Okay, in this example, we are just making the layers also. Okay, so how we are supposed to create the layer? For creating the layer, student have to click on this layer properties right here. Just wait. Okay, this is the window of layer is open now. Okay, then here is a button for the preparing new layer. So student have to click it here. Okay, so initially we have to make the construction line layer. Okay, so simply you can give a title construction. जो आपको शॉर्टकट जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है दैट यू कैन सेट फॉर द CPRN कंस्ट्रक्शन ऐसे भी आप जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो टाइटल आप वहाँ पे दे सकते हैं. क्योंकि फिलहाल मैं उसका फुल नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ सो दैट स्टूडेंट को एक क्लैरिटी मिले. ओके, सो हियर लाइन टाइप कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे कंटिन्यूस चाहिए बट उसका जो थिकनेस होना चाहिए. ओके, दैट थिकनेस शुड बी लेस. ओके, थिकनेस मुझे कितना सेट करना है उसका. For the construction line, I will set the line thickness 0.2 mm. Okay, 0.2 will be the point for that. 0.2 mm. I set the thickness for the construction line layer. Now the new layer. Here we are going to set the XY. You know, dear students, we are going to make the axis. So for that also we are preparing one layer. Okay. So for the XY line, we have to थोड़ा सा इसके लिए ज़्यादा थिकनेस सेट करेंगे तो भी चलेगा. We can set the thickness 0.5 mm. Okay, तो whenever you will be taking a print मतलब जो PDF क्रिएट होगा तो उसमें XY लाइन जो है वो थोड़ा सा बोल्ड आपको दिखेगा. ओके, क्वाइट इम्प्रेसिव इट विल बी. एंड यू नो डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए वी हैव टू सेट अनदर कलर for the construction line. Let me tell you which color we have to select. Okay, sort of gray color, gray shade. So we are preferring 251. 252 is also there. So out of 251 is more better. So we are going to select 251 shade of the gray. Now after this, so this is the basic thing construction on XY. So after this, you have to create a layer. Once again, I am telling you, dear students, you can prepare this before starting the exam. Okay, so that आपका time save हो जाएगा. Okay, and what is supposed to do after this? You have to make a layer for the object lines. Okay, nothing but the outlines and border lines. Okay, so we are calling as an outline. Otherwise, you can we will title here as an object line. तो जो भी ऑब्जेक्ट का कंटिन्यू लाइंस हमें ड्रॉ करना है. ओके, सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस लेयर. ऑब्जेक्ट लाइन के लिए कलर ऑब्वियसली वी हैव टू सिलेक्ट द व्हाइट कलर ओवर देयर. सो हियर इज दैट व्हाइट कलर. Basic color, all the basic shades are here. See, red, yellow, all are here. So from here also you can change it to white. Okay, and for the object line thickness should be 0.3 to 0.35 mm. तो फिलहाल अभी मैं 0.3 mm का
तो थिकनेस से यहाँ पे सेट कर रहा हूँ 0.35 विल बी ऑल्सो ओके। चलो ठीक है 0.35 सेट करेंगे एंड डन। नो नीड टू चेंज द लाइन कलर। नेक्स्ट, okay, can you tell me which lines we are going to draw in the sectional orthographic projection? Center line. Yes, Hidden center line. line, thereafter yes, Hidden hidden line. line। चलो ठीक है, सेंटर लाइन से पहले स्टार्ट करते हैं। ये सेंटर लाइन सेंटर लिखेंगे, सीएल लिखेंगे, आपके कन्वीनियंट के हिसाब आप इसको टाइटल दे सकते हैं। ओके, फॉर द सेंटर लाइन वी हैव टू सिलेक्ट द कलर रेड एंड लाइन टाइप। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा कोई कोई बच्चे ने मुझे क्वेरी रेज किया था, व्हाट्सएप पे क्वेरी पूछा था कि ये लाइन टाइप के लिए क्या करना होता है बेटा। Okay, so sir, after clicking at here, we are getting only one option. Yes, it's there is only one option present. Okay, so how we can make the another option available over there? For that, student have to click on the button load. Okay, after clicking on the button load, you will be available multiple types of line. Okay, चलो ठीक है, अभी हमें सेंटर लाइन की रिक्वायरमेंट है, तो वी हैव टू सिलेक्ट वेयर द सेंटर लाइन इज एग्जिस्टिंग ओवर देयर। ओके, तो देयर आर अगेन वैरायटीज सेंटर, देयर आर सेंटर 2 एंड सेंटर x2। सो इट इज प्रेफर्ड कि सेंटर 2 इज कैन यू कैन सिलेक्ट द सेंटर 2 वाला लाइन। ओके, सेंटर 2 वाला लाइन सिलेक्ट करना एंड ओके। ओके, देखो आफ्टर लोडिंग दैट लाइन, आफ्टर लोडिंग दैट लाइन इट इज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। ओके, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, आपको अलग से यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा बाय क्लिकिंग ऑन दैट सिंपली। मतलब यहाँ से हम लोगों ने बस उसको लोड करके रख दिया बट सिलेक्ट नहीं किया, उसको सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ओके डायरेक्टली कर दोगे तो कंटिन्यूस लाइन ही कंटिन्यू होगा। ओके, तो यू हैव टू डू इट बाय क्लिकिंग एट हियर। चलो ठीक है, अभी मुझे सेंटर हिडन लाइन भी चाहिए, तो चलो ठीक है, हिडन अभी भी हम लोग नाउ ऑल्सो वी कैन ऐड इट, अगर चाहिए तो बाद में भी उसको ऐड कर सकते होंगे। हिडन टू अभी मैं उसको ऐड करके यहाँ पे रख देता हूँ एंड डन। देखो दोनों लाइन मैंने यहाँ पे भी लोड करके रख दिया है। इसके अलावा तो कोई हमें लाइन टाइप का जरूरत है नहीं। तो क्लिकिंग ऑन ओके, राइट नाउ आई नीड अ सेंटर लाइन, so I clicked on center 2 and done। ओके, व्हाट आई सपोज टू डू आफ्टर दिस, इसके बाद में अभी क्या करना है कि हिडन लाइन, एज यू नो कि वी नीड हिडन लाइन। तो हिडन लाइन again the choice is of you। okay, but I prefer green color for the hidden line। okay, and obviously line thickness, line type you have to change hidden line के लिए hidden to line select करना। एक hidden to line select किया and after here लाइन थिकनेस थोड़ा सा हमें अभी यहाँ पे रिड्यूस करना है। ओके, अगर आपने 0.35 लिया है तो उससे थोड़ा सा ये 0.3 वाला आपको मतलब 0.05 से उसका थिकनेस कम कर देना है। 0.25 लेंगे तो भी चलेगा। ओके, चलो ठीक है, लिखेंगे 0.3 लेता हूँ यहाँ पे। ओके, मतलब आपको डिफरेंस यहाँ पे रियलाइज हो रहा है। देखो ये 0.35 का और हिडन लाइन का थिकनेस हमेशा कम रखना है। इवन सेंटर लाइन का भी है बेटा, सेंटर लाइन का भी जो थिकनेस है ना ऑब्जेक्ट लाइन से हमेशा कम रखना है। सेंटर लाइन का भी थिकनेस, दीज आर द डिटेल्स एक्चुअली। मतलब स्टूडेंट में फील की सर थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग कर रहे हैं, यू मैं श्योर यू कैन यू में फील लाइक दैट। लेकिन चलो ठीक है, आपको एक इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो एक ही बात बताऊंगा मैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट का लाइन का थिकनेस ज़्यादा चाहिए। ओके, 0.3 से 0.35, और हिडन लाइन का हिडन सेंटर का आप नहीं भी चेंज करेंगे तो भी चलेगा, नो इशू। ओके, बट ये जो कंस्ट्रक्शन वाला लाइन है, कंस्ट्रक्शन वाला लाइन तो ऑब्वियसली आपको एकदम थिन रखना है, 0.20 ही रखना है। ओके, दैट्स इट। एंड व्हाट नेक्स्ट, वन मोर लेयर वी वांट। चलो ठीक है, सेंटर लाइन हो गया, हिडन लाइन हो गया, क्या बचा है अभी यहाँ पे? वी आर गोइंग टू गिव द डायमेंशंस, राइट? So we have to create a layer for the dimensions also। Dimensions, need to change the color, this color you can select। okay, magenta color is there, so you should prefer it for the dimension, magenta color, and the line type should be continuous।
थिकनेस शुड बी अगेन 0.3, 0.25 से 0.3 सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे. ओके, एंड दैट्स इट. So these are the enough layers. Actually, sometimes we are asking students to make the layer for the हैचिंग लाइन ऑल्सो. ओके, हैचिंग लाइन के लिए भी चाहिए तो आप एक लेयर क्रिएट करके रख सकते हो. तो मतलब जो हैचिंग जो रहेगा वो लेयर में ही रहेगा. वेन एवर स्टूडेंट वॉन्ट टू ऑफ इट ऑन इट, सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी विल बी अवेलेबल देयर. तो चलो इसके लिए हम लोग एक येलो कलर यहाँ पे सिलेक्ट करके रखते हैं. ओके, लाइन थिकनेस विल बी द 0.30. It's completely fine. ओके, यू गॉट इट बेटा. लेयर्स कैसे क्रिएट करना है सब लोगों को अभी रिवीजन हो गया. यस सर. यस ओके, सर. ठीक है. अभी भी लेयर में कोई डिफिकल्टी है? ओके, चलो ठीक है. ये लाइन थिकनेस का बस इम्पोर्टेंट यही है कि ऑब्जेक्ट का जो लाइन है, कंस्ट्रक्शन का लाइन 0.30, बाकी का सबका आप एक 0.35 सेट करोगे तो भी चलेगा, एक्सेप्ट द एक्स वाई. ओके, एक्स वाई का थोड़ा सेंटर में लाइन आता है तो थोड़ा बोल्ड दिखेगा तो ड्राइंग लुक इम्प्रेसिव. ओके, दैट्स इट. नाउ आई एम क्लोजिंग दिस विंडो. ओके, तो यहाँ पे क्लोज करने के बाद देखो ऑल द लेयर्स आर अवेलेबल एट हियर. यहाँ पे सब ये लेयर अवेलेबल हो गए आपको. ओके, यू हैव टू सिलेक्ट दैट लेयर एंड यू कैन स्टार्ट. ओके, वी हैव नॉट सिलेक्टेड द प्रॉब्लम येट. कैन यू सी द मैनुअल ओवर हियर? जो भी एग्जाम का एक आधा प्रॉब्लम है, दैट ओनली वी आर गोइंग टू टैकल ओवर हियर. ओके, ये थोड़ा सा ये हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है बेटा. नो, राइट? व्हाट डू यू थिंक, कैन वी स्टार्ट विद दिस? या फिर इससे बाकी तो मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है. ओके, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज़्यादा है ना. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू टेक दिस एग्जांपल. ओके, are you agree with me? Can we go ahead with this example? Why there is no any response? यस सर. Yes, sir. Okay, चलो ठीक है. एग्जाम्पल इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. LBH. ओके, लेंथ हाइट विड्थ कितना है बताओ जल्दी, चलो फास्ट. तब तक मैं एक्स वाई क्रिएट कर देता हूँ. डायरेक्शन ऑफ एक्स इज एट हियर. ओके, मतलब ये अपना एक्स मतलब ऑल टाइम इट विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू. ओके, सेक्शनल फ्रंट व्यू भी बोला यहाँ पे, तो ये भी वन मोर बेनिफिट इज देयर टू आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू. ओके, सेक्शनल लाइन यहाँ पे दिया ना, ए. ओके, चलो ठीक है, मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे डायमेंशन. अभी देखो बेटा यहाँ पे ये फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ये रेडियस कितना है? ओके, इट्स 30 mm, करेक्ट है? ओके, डायमीटर 60 है ना, उसका डायमीटर रेडियस हो गया 30 mm. ओके, 30 प्लस, ओके देखो ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ओके इसके सेंटर के थ्रू पास हो रहा है. ठीक है, ये सेंटर वाला लाइन है उसका. तो इसके फ्रॉम दिस लाइन टू ये सेंटर लाइन ये डिस्टेंस दिया 40 mm. ओके, तो ये डिस्टेंस अभी जो मैं टारगेट कर रहा हूँ उसको ऐड करना है. 30 प्लस 40. ओके, 30 प्लस 40 प्लस ये जो यहाँ पे फ्रस्ट्रम है उसका बॉटम में डायमीटर है 60 mm. ओके, उसको बॉटम में कितना डायमीटर है 60 mm है, तो ऑब्वियसली उसके बाद में कितना एग्जिस्ट करेगा, वो 30 mm एग्जिस्ट करेगा. एग्जिस्ट करेगा है ना, तो इसके आगे रेडियस रहेगा ना उसका 30 mm का. 40 30 प्लस 30 कितना हो गया रे बेटा? 100. 110. 100.
ओके, लेंथ सबको क्लियर है? ओके, समटाइम्स आई मे ऑल्सो कमिट सम मिस्टेक। ओके, तो थोड़ा अगर मेरा मिस्टेक भी हो रहा है तो रियलाइज हो रहा है तो फटाक से मुझे बताना। ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट? एल बी, विड्थ कितना है इसका? विड्थ तो आई थिंक नो एनी कंफ्यूजन। ओके, इट्स क्लियरली 80 mm में आइडेंटिफाई हो रहा है। ओके, 80 mm से ज़्यादा फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट टू द फर्देस्ट पॉइंट, नो एनी डिस्टेंस इन बिटवीन। ओके, 80 is the maximum distance for the width. Okay, and what is the height? 136. Okay, good to hear from you. Okay, ये 60 है ना बेटा? ये 60 हो गया, ये 36 हो गया। ओके, और उसके ऊपर ये 40 है। 60 प्लस 40 100 एंड 36, गुड, 136, गुड ऑब्जर्वेशन। चलो ठीक है, अभी ये होने के बाद हमें क्या करना है कि इमिडिएटली पहले तो ये एनालिसिस अपना करेक्ट होना चाहिए। ओके, ये एनालिसिस करेक्ट होने के बाद ये एलबीएच ये मार्क हो गया। पोजीशन, व्यूज का पोजीशन। ओके, ये फ्रंट व्यू यहाँ पे है ना, तो ये हो गया यहाँ पे ये। ओके, उसके नीचे ऑब्वियसली टॉप व्यू आएगा। ओके, बचा कौन सा व्यू है बेटा? ओके, एलएचएस व्यू ड्रॉ करने के लिए बोला, तो एलएचएस व्यू कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, राइट? Yes, sir. यस सर, कौन बोल रहा है? यस सर, लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ पे आएगा? राइट साइड में आएगा ना? Yes, sir. अभी भी यस सर। ओके, व्हाट आई एम टेलिंग कि थोड़ा यही तो मिस्टेक कर देते हैं बच्चे कि काफी गैप होता है ना बीच में। पोजीशन ऑफ लाइन, पोजीशन ऑफ सॉलिड सीखते हैं, पोजीशन ऑफ लाइन सीखते हैं। ओके, तो फिर थोड़ा सा भूलने का होता है, तो वो आपको भूलना है नहीं। ओके, ध्यान रखो कि जैसे टॉप व्यू, तो फिर टॉप व्यू भी टॉप में होना चाहिए था ना, गेटिंग इट? टॉप व्यू कैसे नीचे आ गया? ओके, इट्स अबाउट द प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फॉलो कर रहे हैं ना। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रखा है, टॉप व्यू जाएगा नीचे। ओके, राइट हैंड साइड व्यू जो है ऑब्जेक्ट का, ओके, राइट हैंड साइड व्यू, ये मैंने आर एच गलती से लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पे एल एच लिखना है मुझे। ओके, ऑब्जेक्ट का जो राइट हैंड साइड व्यू है, राइट हैंड साइड व्यू वो लेफ्ट में आएगा। ओके, एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो है वो ऑब्जेक्ट के राइट साइड में चला जाएगा। ओके, देखो अभी सिंपल सी बात है ना, यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ उसको, ओके, लेफ्ट हैंड साइड व्यू को देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे जाएगा? फ्रंट व्यू के वो साइड में चला जाएगा। ओके, फ्रंट व्यू के राइट साइड में चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये सबको क्लियर हो गया अभी? यस, अभी तो फिलहाल आर एच इसके लिए निकालना है नहीं, अभी तो एल एच ही निकालना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू निकालना है। तो फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड टॉप व्यू, ये सबको क्लियर है? पोजीशन, यस और नो? Yes, sir. ओके, अब भी पूछो अगर कोई क्वेरी लग रहा है कि सर नहीं समझ में आ गया, ये भी आपने इधर पे लिया, ओके, सिंपल सी बात है। देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, हम लोग फॉलो करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या हो रहा है कि जो आपको फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू तो अगर एक रेफरेंस कंसीडर करके चलते हैं, तो टॉप व्यू आएगा फ्रंट व्यू के नीचे। ओके, राइट हैंड साइड व्यू आएगा फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में आएगा। देखो अभी ये फ्रंट व्यू के राइट साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। ओके, चलो ठीक है, अभी वी आर मूविंग अहेड। तो पहले तो एक्स वाई एक्सिस मुझे क्रिएट करना है इसके लिए। ओके, ये ऐसे एक्सिस अभी मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। लेंथ वगैरह तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख के लिया है, तो एक्सिस बना के ये इसका पोजीशन हम लोग प्लॉट कर देंगे। अभी एक्सिस कैसे बनाने का होता है? विच कमांड इज देयर? कैन एनीवन टेल मी? ओके, चलो ठीक है, वो एक्सिस, यस यस, कंस्ट्रक्शन। ओके, उसके पहले व्हाट वी हैव टू फॉलो सम चेक पॉइंट। ये ग्रिड मोड ऑफ रखना है, स्नैप मोड ऑफ रखना है। ओके, उसके बाद में ये ऑर्थो जो है, ऑर्थो आपको
ऑन रखना है। तो उसके लिए शॉर्टकट भी है बेटा, शॉर्टकट इज F8। ओके, F8 से आपको ये और तो हमेशा ऑन ही रखना है। ओके, देयर आफ्टर ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग बोथ शुड बी ऑन ऑल द टाइम, ये दोनों भी हमेशा ऑन होना चाहिए। ओके, गेट इट, ये you got it, you have to keep it off, red mode and snap mode. Okay, ortho mode, object snap and object snap tracking, ये दोनों, so three things you have to put it on. Okay, that's it. Now it's time to start. अभी जैसे आप लोग जैसा डिस्कस किया, यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना है। ओके, फ्रॉम हियर वी हैव टू सेलेक्ट इट। ओके, चलो ठीक है, इसके लिए मैंने लेयर क्रिएट नहीं किया ना। तो देखो पहले तो हमें क्या करना है, एक्स वाई लाइन क्रिएट करना होता है। स्टिल इंटेंशनली मैं कंस्ट्रक्शन लाइन लूंगा, क्यों लेता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन आपको भी पता चलेगा। हियर आई हैव टू टेकन द construction line command. Okay, one line in a vertical direction, one line in a horizontal direction. Okay, seeing first click, second click upside, second click, okay, right side, okay, या फिर लेफ्ट साइड। तो फिर आपका ये एक्स वाई लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गया। पर इंटेंशनली मैंने इसका क्या किया था, जो लेयर कंस्ट्रक्शन लिया था, okay, उसका पर्पज क्या है कि ये हेल्प करेगा हमें ऑफसेट कमांड यूज करके मार्जिन ड्रॉ करने के लिए। थोड़ा सा मेरा सॉफ्टवेयर आज हैंग हो रहा है। ओके, दिस लाइंस आर देयर। अभी क्या करना है बेटा, ऑफसेट कमांड के लिए ओ एंटर। Let me do it again, sort of okay. For offset, you have to type O, enter, distance 20, enter. Okay, you have to select vertical line. To select vertical line and specify the side. Okay, this side I need that offset. Again, object this line and side. Okay, do it for the horizontal line also. Upside offset and downside offset. Okay, here we have set the margins. Okay, after setting the margins,
We have to just click on these two lines. Okay. We have to change its layer. Okay, its layer should be x1. Done. Okay. What next? Now we have to make the boxes for the respective views. For the front view, you have to take a line 100. This side we have to do the offset at the distance of 100 mm. Again O enter, 100 enter. This is the line. And for the front view, I have done one first offset. Okay, thereafter I know that the height is 136. Okay, so यहाँ पे टॉप पे मुझे 136 के ऊपर ऑफसेट करना है. ओके, ऑब्वियसली मार्जिन लाइन के ऊपर, मार्जिन लाइन के ऊपर. ओके, ये भी मार्जिन लाइन से ऑफसेट किया हमने. ओके, 136 is the height. So again, go enter, 136 enter. Okay, done. After this, what we are supposed to do? Width is given. देखो इंटेंशनली मैंने पहले हाइट, पहले लेंथ किया, बाद में हाइट. Okay, thereafter you have to select the width. Okay, for doing offset. So O enter, width is 80 mm, 80 enter. देखो width के लिए अभी simultaneously offset होगा अपना, मतलब क्या? First offset for the side view and second offset for this line for the top view. Getting it? तो इन दिस वे जो अपना पोजीशन था फ्रंट टू टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू का, वो हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट कर दिया. क्लियर टू एवरीवन ना? ओके. और एक टास्क इंटेंशनली मैं स्टूडेंट को यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि क्या करना है. यू टू गो फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्स वाई लेयर. ओके, और यहाँ पे ना एक लाइन क्रिएट करके रख देना. टू जस्ट क्रिएट वन लाइन एट लेयर. ये हेल्प क्या करेगा आपको? ये बताएगा कि आपको नो नीड टू ड्रॉ एनीथिंग एट हियर. यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना, तो आपको मिस्टेक अवॉइड होगा. ओके, ये आपका मिस्टेक अवॉइड होगा. तो यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ एनीथिंग एट दिस रीजन. मतलब कभी कभी क्या होता है कि बच्चे यहाँ से फ्रंट व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, मतलब प्लॉट तो बॉक्सेस तो करेक्ट बनाएंगे, लेकिन फ्रंट व्यू यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो मिस्टेक विल हैपन. मतलब वो गलत ही हो गया एग्जाम्पल के. ओके, तो वो सब अवॉइड करने के लिए पहले ही एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ पुटअप कर दो, तो इट विल गिव यू आइडिया कि नो नथिंग टू ड्रॉ एट हियर. ओके, मतलब फ्रंट व्यू मुझे हमेशा यहाँ से ही स्टार्ट करना है. इसका एक क्लियर इंडिकेशन रहेगा. ओके, सो जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था कि वेयर एवर द सर्कुलर पार्ट्स आर विजिबल, ओके, फर्स्टली उसको टारगेट करो. दे आर श्योरली हेल्प अस टू ड्रॉ द रिमेनिंग व्यूज इजीली. ओके, तो अभी ये जो सर्कल है, फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल. ओके, ऑब्वियसली कौन से भी में एज ए सर्कल दिखेगा. ये सिलेंड्रिकल पार्ट का सर्कल कौन से भी में दिखेगा हमें एज ए सर्कल? ऑब्वियसली फ्रंट व्यू में दिखेगा. और ये जो यहाँ पे फ्रस्ट्रम है, होलोफ्रस्ट्रम. ओके, तो इसका वन सर्कल, सर्कल 2 एंड जो बॉटम में जो सर्कल 3 है, ओके, वो कहाँ पे दिखेगा रे बेटा? टॉप व्यू में दिखेगा. चलो इसको भी हम लोग टारगेट करेंगे. तो चलो फ्रंट व्यू वाला जो है ना, तो उसको पहले मैं सेट कर रहा था. ये ऑब्वियसली ये कॉर्नर में आएगा, तो मैं बॉटम से ऊपर 30 और ये वाले से भी 30. तो यहाँ पे एक ऑफसेट कर सकता हूँ मैं, अदरवाइज आई कैन क्रिएट वन लाइन. चलो ठीक है, अभी फिलहाल मुझे ऑफसेट थोड़ा ज़्यादा सिंपल लग रहा है यहाँ पे, तो मैं ऑफसेट कर देता हूँ. अदरवाइज आप लोग को पता है कि वी क्रिएट अ सेंटर लाइन और सेंटर लाइन को शिफ्ट कर देते हैं. ओके, तो मैं 30 mm ऑफसेट किया यहाँ पे, बॉटम वाले लाइन को भी 30 mm ऑफसेट किया. तो जाके हम लोग को ये यहाँ पे सेंटर क्रिएट हो गया, वो वेयर वी कैन ड्रॉ दिस प्रोफाइल. ओके, गेटिंग इट? एट दिस पोर्शन वी कैन ड्रॉ दैट प्रोफाइल नाउ. ओके, क्लियर टू एवरीवन? एंड हियर आल्सो वी कैन डू. टॉप व्यू के लिए भी ऐसे कर सकते हैं. टॉप व्यू के लिए हम लोग को दूसरा वाला टेक्निक यूज करेंगे. सॉरी, यस, हाँ, टॉप व्यू के लिए हम लोग को दूसरा वाला टेक्निक यूज करेंगे. ये जो सेंटर लाइन ड्रॉ करके करते हैं ना. सो आई एम टेकिंग अ लेयर सेंटर लाइन.
क्रिएटिंग वन लाइन एट हियर फर्स्ट, एक लाइन में रैंडमली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। Okay, चलो ठीक है, यहाँ तक ड्रॉ वन लाइन आई एम ड्रॉइंग इट हियर। ओके चलो, ये इशू आप भी फेस करोगे कि ये यहाँ पे मुझे लाइन ड्रॉ करना है, ये पॉइंट यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, कोई इसका रीजन बताएगा? आई हैव टू स्टार्ट, जहाँ पे कर्सर है वहां से मुझे लाइन स्टार्ट करना है, बट यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, वेयर इज द कर्सर इज, तो हाउ आई हैव टू स्टार्ट? क्या प्रॉब्लम है फिलहाल, कोई रिकॉग्नाइज कर सकता है यहाँ पे व्हाट विल बी द इशू? चलो ठीक है, लेट मी टेल यू। देखो यहाँ से ना, ये नियरेस्ट वाला पॉइंट ऑफ है, कि नियरेस्ट वाला पॉइंट ऑफ रहेगा तो आपको ये ड्रॉ करने के लिए दिक्कत होगी। ओके, तो नियरेस्ट वाला पॉइंट देखो, अभी नियरेस्ट वाला पॉइंट अवेलेबल हो गया, तो कर्सर इज देयर विद दैट ग्रीन सिंबल, सो यू कैन स्टार्ट, यू कैन ड्रॉ दैट सेंटर लाइन ओवर हियर। ओके, एक्चुअली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो भी इनफ है, यहाँ पे एक्चुअली ड्रॉ करना है। रैंडमली मैंने इसको पोजीशन कर दिया है। नाउ वी हैव टू जस्ट चेक इट कि उसको सेंटर में कैसे लिया जाए। टॉप व्यू अगर चेक करेंगे तो उसका विड्थ है 80 mm, तो 80 का हाफ हो गया 40, तो इसको मैं अभी शिफ्ट करूंगा 40 mm डाउन। ओके, ये जो लाइन है, तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस पॉइंट, डायरेक्शन दे दिया 40 एंटर, डन। ओके, तो 40 mm शिफ्ट हो गया। एंड हाउ मच इज द रेडियस फॉर दिस? इसका आउटर वाले का रेडियस कितना है? इट इज हैविंग द रेडियस 30 mm। ठीक है, 30 mm डिस्टेंस से मुझे वो लाइन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है। ओके, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस लाइन, ये पॉइंट के ऊपर टच क्लिक किया। ओके, देयर आफ्टर डायरेक्शन दिया, 30 mm एंटर। ओके, हाँ, अभी क्या करना है बेटा? अभी यहाँ पे सर्कल के लिए हम लोगों ने उसका पोजीशन रेडी कर दिया है। चलो ठीक है, सेंटर लाइन हम लोगों ने ऑलरेडी कमांड लिया है, तो यहाँ पे भी हो उसके लिए हम लोग एक सेंटर लाइन रेडी कर देते हैं। ओके, इन दिस वे ओनली, मतलब अपना ब्रेन काम करना चाहिए। जैसे अभी सेंटर लाइन कमांड लिया है तो वी शुड एबल टू ड्रॉ। चलो ठीक है, नाउ आई हैव टेकन ऑब्जेक्ट लेयर, सो यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ करना एक्सपेक्टेड है फ्रंट व्यू में, इनर वाले का रेडियस है 15, आउटर वाले का रेडियस है 30। तो सर्कल के लिए सी एंटर। देखो अभी मिस्टेक क्या हो सकता है, ये मिड पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। ओके, ये मिड पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, हमें एग्जैक्टली वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट चाहिए। गेटिंग इट बेटा? ओके, परपेंडिकुलर बोले या फिर इंटरसेक्शन वाला पॉइंट बोलो, दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, ये मिस्टेक जो भी हो सकते हैं होते हैं, तो स्टूडेंट आर टेलिंग कि सर ये मेरा थोड़ा सा इंक्लाइंटी से हो गया, मैंने तो बराबर पॉइंट लिया था। ओके, अगर आप ऐसे पॉइंट लोगे ना तो ये गलत पॉइंट होगा। ओके, तो थोड़ा सा जूम करके आपको चेक करना है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ही बराबर आपको सिलेक्ट करना है। गेटिंग इट? ये ऑटोमेटिकली 30 है, उनका रेडियस यहाँ तक आ जाएगा। Okay, again enter for repeating the center command, circle command. Inner one is having a radius 15, enter, done. Okay, यहाँ पे कितना सर्कल है, इसका रेडियस कितना है? आउटर वाले का रेडियस है 30, इनर वाले का देखो सीक्वेंस से चेक करेंगे तो 10, 20, 30 ऐसे उसके रेडियसेस है। ओके, 10, 20, 30। Again, I am repeating the circle command. This is the center point for us. देखो ये देखो यहाँ पे कितना मिस्टेक होने का ग्रेट चांस है। ऐसे लग रहा है कि ये यही उसका सेंटर है, नहीं है। एग्जैक्टली हमें उसका मिड पॉइंट ही लोकेट करना है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। ओके, 10 जो सबसे छोटा वाला सर्कल है। ओके, उसके बाद में 20 रेडियस, उसके बाद में 30 रेडियस। रेडियस, एंटर, सर्कल क्रिएट हो गया। जूम करने के बाद, जूम आउट करने के बाद पता चलेगा। यहाँ तक क्लैरिटी है? यस बेटा? ओके, चलो अभी क्या करना है हमें, व्हाट वी आर सपोज टू डू नाउ। अभी फ्रंट ही पहले हम लोग टारगेट करेंगे, फ्रंट ही को फिनिश कर देते हैं। ओके, तो
तो फ्रंट व्यू में हमें आइडेंटिफाई होगा कि ये देखो ये फ्रस्ट्रम वाला पार्ट यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू में जो सर्कल इसके ड्रॉ किए है उसका पोजीशन हम लोग फ्रंट व्यू में लेके आते हैं। ओके, तो हाउ वी आर सपोज टू डू, कैन एनीवन टेल मी कैसे करना होता है? एनीवन इज रिमाइंडिंग? Offset and through. यस, ओ एंटर, टी एंटर। ओके, अब ये लाइन सिलेक्ट करो, ये पॉइंट के थ्रू ऑफसेट करेगा। ओके, हो गया? चलो ठीक है, अभी ये देखो कैसे करना है हमें। तो हियर थोड़ा सा हमें और एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि योर अंडरस्टैंडिंग की हियर इट इज हैविंग का हाइट 40 mm, उसका हाइट 40 है और उसके नीचे 20 mm का डिस्टेंस है। ओके, ये कितना डिस्टेंस है? 20 mm का। ओके, तो देखो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, ओ एंटर, दैट इज हाइट 40 mm। तो यहाँ से मैंने 40 mm का एक ऑफसेट कर दिया। ओके, आगे ओ एंटर, 20 एंटर, तो 20 mm का और एक ऑफसेट उसके नीचे कर दिया। उसका थिकनेस 20 mm है ना ये प्लेट का। ओके, तो 20 mm का ऑफसेट कर दिया। चलो ठीक है, अभी 20 mm का ऑफसेट में कर ही रहा हूँ, तो यहाँ से भी और एक ऑफसेट में करूँगा। ओ एंटर, 20 एंटर, ये जो सेंटर के यहाँ से जो डायरेक्शन में 20 का ऑफसेट है। देखो एक बात रियलाइज हो गया कि ये जो ऑलरेडी हम लोगों ने एक सर्कल के लिए जो लाइन लिया था, ओके, सेम लाइन वहाँ पे आ रहा है। तो दिस इज द लाइन हैविंग द डिस्टेंस 20, ये डिस्टेंस यहाँ पे 20 है। ओके, चलो ठीक है, लेकिन सर वो 20 हमें रेफर नहीं करना है, मत करो। दूसरा ऑप्शन क्या है देखो। ओके, तो वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट लाइन नाउ, जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो कि क्या करेंगे हम लोग, अभी सर्कल का तो प्रोजेक्शन सब कर दिया। नाउ यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि अभी पार्ट बाय पार्ट हमें उसका फ्रंट व्यू कैसे फिनिश करना है। पार्ट बाय पार्ट मतलब क्या? सबसे पहले मैं देखूंगा ये सर्कल जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, उसको ड्रॉ कर लेंगे। ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है सर वो, ओके, सिलेंड्रिकल पार्ट का फ्रंट व्यू ऑलरेडी ड्रॉ हो गया है। देखो ये सिलेंड्रिकल पार्ट का फ्रंट व्यू बन गया है। ओके, उसके बाद में ये प्लेट है ना, यहाँ पे ये प्लेट का कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है। कितना ऊपर जा रहा है? 36 ऊपर जा रहा है। यहाँ पे चेक करेंगे, 36 ऊपर जा रहा है। ओके, सो ये लाइन कमांड लिया मैंने, यहाँ से मुझे जाना ऊपर 36 से। ओके, गेटिंग इट। देखो जो कंस्ट्रक्शन किया था उसका हेल्प हमें ऑलरेडी हो रहा है। नहीं भी करेंगे तो भी ये 36 डायरेक्शन अगर लेते थे तो भी हम लोग को पता चलता था। ओके, 36, और ये कहाँ तक जाना है हमें? वी हैव टू गो इट अप टू द एंड, कंप्लीटली एंड तक जाना है। देखो मैं अभी नॉर्मल फ्रंट व्यू पहले बना रहा हूँ, बाद में उसको सेक्शनल में कन्वर्ट करूंगा। ओके, अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस है तो डायरेक्टली आप सेक्शनल भी ड्रॉ कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। फिर वो ये आ गया यहाँ तक। फिर इसके बाद में यू हैव टू ब्रिंग इट अप टू दिस पॉइंट। फिर जो 20 mm का डिस्टेंस बचा है ना, देखो अभी ये टोटल कितना हो रहा है डिस्टेंस? 70 हो रहा है। 70 में से 20 में वो प्लेट का थिकनेस है, तो 50 mm का लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। अदरवाइज ये ऑलरेडी पता है क्या, 20 mm का ऑप्शन वहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है, यू हैव टू ब्रिंग द लाइन अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, ये जो जॉइनिंग प्लेट है, जॉइनिंग प्लेट ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। सिलेंड्रिकल पार्ट डन। जॉइनिंग प्लेट है फ्रस्ट्रम को और सिलेंडर को, जॉइनिंग प्लेट ड्रॉ किया अभी हम लोगों ने। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द फ्रस्ट्रम। ओके, ऊपर वाला जो फ्रस्ट्रम है उसको ड्रॉ करेंगे। ओके, सबसे पहले तो उसका जो आउटलाइन है, आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, और इनर वाला, सबसे इनर वाला जो है, फॉर दैट वी हैव टू, बेटर होगा कि हम लोग पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर दें, तो एक थोड़ा सा हमें व्हाट यू कैन से एक रेफरेंस मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगा। नीड टू चेंज द लेयर। ओके, सेकंड वाला लाइन चाहिए मुझे कि और एंड होगा यहाँ पे। देखो उसका टॉप व्यू से हम लोगों ने रेफर किया, टॉप व्यू से रेफर किया। ठीक है, ये पॉइंट तो मैंने यहाँ पे वो फ्रस्ट्रम एंड किया। अभी इनर वन जो है, it will be having the line like this। पर ये तो
इनर होल है दैट शुड बी हिडन, यस ऑब्वियसली इट शुड बी हिडन। अभी फिलहाल हम लोग नॉर्मल फ्रंट व्यू बनाएंगे, बाद में उसको सेक्शनल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इट्स लाइक दिस। तो ये फ्रस्ट्रम का जो फीचर था वो भी हम लोगों ने ऐड कर दिया। नाउ द अनदर थिंग इज दैट कि ये भी रिव है यहाँ पे। ओके, तो रिव को क्रिएट कर देते हैं हम लाइन कमा। रिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको टेंजेंशियली कनेक्ट हो रहा है। Done. ओके, क्लियर हो गया बेटा? What do you think is anything is remaining in the front view now? Finish? यस सर। ओके, चलो इमिडिएटली मैं भी इसको कन्वर्ट कर देता हूँ सेक्शनल फ्रंट व्यू में। इमिडिएटली मैं इसको भी सेक्शनल फ्रंट व्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो अभी ये कट होने के बाद स्टूडेंट हैव टू इमेजिन दैट कि हेक्सो इज पासिंग थ्रू द एक्सिस। ओके, जो एक्सिस मेंशन किया है अलोंग ए ए, ओके, इसके थ्रू एक्सो पास होगा और ऑब्जेक्ट कट होगा। कट होने के बाद कौन से सरफेस ओपन हो जाएंगे, कौन से सरफेस जो है मर्ज हो जाएंगे, वो हमें सोचना है। ओके, अभी ओपन हो जाएंगे मतलब क्या, देखो अभी ये हिडन वाला जो पार्ट है वो ओपन हो जाएगा, मतलब ये हिडन लाइन को अभी मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट करना है मेरे को। ओके, तो ये जो लाइन है वो ये जो लाइन का एक डिस्टेंस है, मतलब ये सिंगल प्लेन रह जाएगा, ये सिंगल प्लेन होगी। तो इसका डिस्टेंस मुझे यहाँ तक के रखूँगा। देखेंगे ये प्लेन जो है ना मर्ज हो गया, जैसे मैंने बोला कि ये पार्ट ओपन हो गया, तो इसके लिए उसका एज आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो कट होने के बाद ये सरफेस यहाँ पे मर्ज हो गया, गेटिंगे? ओके, वन मोर सरफेस इज गेटिंग मर्ज। ओके, ये प्लेट का जो पार्ट है ना, ये प्लेट का पार्ट और ये सिलेंड्रिकल पार्ट, यहाँ पे वो मर्ज हो जाएगा। ओके, तो अलग अलग था ना वो सरफेस, मतलब सिलेंड्रिकल लाइन एज उसका यहाँ पे नहीं रहेगा, एज विल नॉट बी एग्जिस्टिंग ओवर देयर। तो मुझे तो क्या करना है, सबसे पहले अभी हैचिंग देना है, राइट? तो उसके पहले मैं उसको ट्रिम कर देता हूँ, क्लियर डबल एंटर, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, जो भी पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा, that portion is there after will be visible after getting it cut. Okay, ऐसे ही वो दिखेगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हेक्सो ने जहाँ जहाँ पे टच किया है वहाँ पे हैचिंग लाइन प्रोवाइड करना है। ऑन दैट पार्ट यू हैव टू प्रोवाइड द हैचिंग लाइन। ओके, चलो ठीक है, अभी हैचिंग लाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ओके, लास्ट 10 मिनट्स आते हैं। अभी मैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट इसका बता रहा हूँ आपको, जो हैचिंग वगैरह करना होता है वो। ओके, बाकी व्यू आई होप कि आप ड्रॉ कर लोगे, बट स्टिल लेक्चर होने के बाद भी मैं इसको अभी मतलब आफ्टर 10:40 हम कंटिन्यूइंग इट, एंड इसका वीडियो में आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द अनदर व्यूज आल्सो। ओके, तो पहले हैचिंग देखते हैं कि अभी कैसे करना है। तो हैचिंग के लिए हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हैचिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप है कि कंस्ट्रक्शन लेयर को ऑफ करना है। क्यों करना है कंस्ट्रक्शन लेयर को ऑफ, कोई बताएगा मुझे? To identify where all sides of object are closed or not. यस, ओके, नहीं नहीं, वो भी एक रीजन है। ओके, तो मेन रीजन है कि अगर हम लोग इसको ऑफ नहीं करेंगे। ओके, देखो ऑफ कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन लेयर है ना, तो इसका जो बल्ब का जो साइन होता है उसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो ऑफ हो जाएगा। हो गया, गेटिंग इट? तो इट इज ऑफ नाउ। देखो अगर मैंने उसको ऑफ नहीं किया रहता था तो अभी हैचिंग प्रोफाइल सिलेक्ट करने के लिए मल्टीपल प्रोफाइल यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करने पड़ते थे, 1 2 3 4 5 6। मतलब वो कंस्ट्रक्शन लाइन क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं ना छोटे छोटे टुकड़ों में। ओके, तो अवॉइड हो गया अभी। तो अभी मुझे हैचिंग करना था, सिंपली यहाँ तो टाइप H7 एंटर। यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी हैचिंग वाला कमांड ऊपर एग्जिस्ट है। ओके, देखो यहाँ पे, हाँ, तो अभी क्या करना है हमें, जस्ट क्लिक द पॉइंट्स वेयर यू वांट टू डू द हैचिंग। मुझे यहाँ पे हैचिंग करना है, आई क्लिक दैट हियर।
have to do the hatching over here. ओके देखो अभी ये सेंटर लाइन था ना, तो सेंटर लाइन डिस्टर्बेंस क्रिएट किया. अगर कंस्ट्रक्शन लाइन होता है तो और डिस्टर्बेंस होता है यहाँ पे. दिस पोर्शन आई नीड टू सिलेक्ट इट. ओके अगर मैंने सेंटर लाइन भी ऑफ किया रहता था तो इजीली मेरा वन क्लिक में ही पूरा सरफेस सिलेक्ट हो जाता था. ओके व्हाट नेक्स्ट, अभी इसके बाद में क्या करना है. सर ये तो एकदम डार्क डार्क दिख रहा है, यस इट विल लुक लाइक दिस ओनली. तो स्टूडेंट हैव टू इंक्रीज इट्स स्केल. ओके तो here you have to type 25 30 as per the requirement of the drawing. देखो मैंने 25 टाइप किया, एंटर किया. where we have to do it at here. okay I hope you got it. Here is the hatch pattern scale. so here student have to change value from 1 to 25. okay पहले value 1 था तो we have changed it to 25. okay you can change it in between the range of 20 to 30 35 also. okay so currently we have selected it 25 mm. Sorry, not a 20 mm, it's a scale, it's a ratio. It's 25. okay you have to type enter over there so it will work. That's it. So from here you can close the window hatch. Otherwise you can directly click on escape button also. escape button के ऊपर क्लिक किया तो भी चलेगा. but sometimes अगर by mistake स्टूडेंट से ये दूसरा कोई लेयर यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, ओके या फिर ऐसे कुछ तो पैटर्न गलती से सिलेक्ट हो गया, मतलब बाय पहले से ही हो गया या फिर गलती से हो गया. ओके तो यू हैव टू जस्ट चेक इट कि ये ANSI 31 पैटर्न आपने सिलेक्ट किया है क्या नहीं. ANSI 31. ओके ये दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. ANSI 31 ही चाहिए. ओके टेक अ नोट ऑफ दैट. ANSI 31 पैटर्न इज एक्सपेक्टेड फॉर अस एंड द स्केल शुड बी 25 mm. ओके मतलब आपको चेक करना है. चलो ठीक है 20 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो कैसे दिख रहा है वो. 20 भी चलेगा, 25 भी चलेगा, इवन 30 भी चलेगा. 30 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए ड्राइंग आपका. तो इन दैट वे ओनली यू हैव टू सिलेक्ट इट. ओके डन. एंड आफ्टर डूइंग दिस यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन एस्केप बटन. ओके ओके नाउ आर यू एबल टू ड्रॉ. यहाँ तक तो सब कुछ टेक क्लियर हो गया ना. यस सर. ओके चलो ठीक है. अभी एक आपको थोड़ा सा गुड न्यूज का एक रिलीफ देना है. कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन ही रखना. ओके व्हाट इज दैट रिलीफ कि जो आपका IIT 1 होगा, सॉरी IIT 2 होगा, इन दैट IIT 2 आपको सेक्शनल ऑर्थोग्राफी का जो एग्जांपल है उसमें तीनों व्यू ड्रॉ नहीं करना है. ओके उसमें आपको बस सेक्शनल व्यू ड्रॉ करना होगा. गेटिंग इट. ओनली सेक्शनल व्यू यू हैव टू ड्रॉ इट. तो जो भी प्रॉब्लम है अभी तो उसके थोड़ा सेक्शनल व्यू ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो. ओके बेटा दिस इंस्ट्रक्शन इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा. क्वेश्चन 1 यू हैव टू ड्रॉ द सेक्शनल. इट मे बी द सेक्शनल फ्रंट व्यू और सेक्शनल साइड व्यू आल्सो. ओके सेक्शनल टॉप व्यू होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फ्रंट व्यू हो सकता है सेक्शनल या फिर साइड व्यू सेक्शनल हो सकता है. एंड अलोंग विद दैट दैट्स इट ओनली. ओके सेक्शनल व्यू ड्रॉ करना है उसका, जो भी एक व्यू रहेगा वो. मतलब जैसे भी ये वाला एग्जांपल है तो आपको बस ये डायरेक्टली ये ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा. ओके बाइक की कोई भी मतलब ये बेसिक कंस्ट्रक्शन किया उसके बाद में व्यू ड्रॉ किया, दैट्स इट, इट्स फाइन. गेटिंग इट. इवन आपको ये सर्कल भी नहीं ड्रॉ करना तो भी चलेगा. ओके हेल्प के लिए चाहिए तो ड्रॉ करना है आपको. इफ यू नीड इट तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन एबल टू ड्रॉ इट विदाउट हेल्प ऑफ दिस सर्कल तो भी चलेगा. गेटिंग इट. I hope instruction is clear to everyone. And हाँ तो it will be asked for the 6 mark. ओके ये फ्रंट व्यू ड्रॉ करना या फिर सेक्शनल साइड व्यू ड्रॉ करना 6 मार्क्स के लिए आएगा. एंड अनदर 9 मार्क्स विल बी फॉर द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एग्जाम्पल. ओके तो दूसरा वाला एग्जाम्पल आपको 9 मार्क्स के लिए सॉल्व करना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का. ओके गॉट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम.
Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके चलो ठीक है, वो क्लास अभी चाहिए तो नोट ही करके ले लो आप. एंड अगेन आई एम रिकमेंडिंग कि लैपटॉप यूज करेंगे एग्जाम के लिए, डेस्कटॉप यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर है. मोबाइल में इतना कन्वीनियंट नहीं होता ड्रॉ करने के लिए. चलो ठीक है. नाउ इट्स दैट. सर उसमें वो जो बीम है सर्कल के ऊपर वो हैच नहीं होगा? हाँ अच्छा, हाँ रिब ना. हाँ ओके हाँ, इट्स गुड दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन. तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था कि वेयर एवर द रिब इज देयर ना. ओके, रिब का जो थिकनेस है, अगर जो कटिंग लाइन है यहाँ पे, जो कटिंग लाइन है ए एक्सिस जो है, ओके, अगर वो रिब का थिकनेस डिवाइड कर रहा है, रिब का थिकनेस डिवाइड कर रहा है, तो आपको रिब को ड्रॉ नहीं करना होता है, रिब को हैचिंग नहीं देना होता है. गेटिंग इट? सर नहीं समझा. तो पहले तो मुझे बताओ कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू टॉकिंग. सर वो सर्कल के ऊपर जो रीप बना है ना, अरे हाँ, वो आई वांट टू नो योर नेम. सोहम कंसारा. तो शुभम यू आर टॉकिंग. ओके, सोहम कंसारा. सोहम सोहम सॉरी. ओके सोहम, देखो ये जो पार्ट है ना, इट इज कॉल्ड द रीप. ओके, यस. अगर ये कटिंग प्लेन है यहाँ पे, अगर कटिंग प्लेन में, मतलब कटिंग प्लेन कौन सा है यहाँ पे देखिए, दिस इज द कटिंग प्लेन. मतलब यहाँ पे वो कट हुआ है ना ऑब्जेक्ट, कटिंग है. Yes. ओके, अगर ये तुम्हारा रिप का थिकनेस है 12 mm, वो थिकनेस को अगर डिवाइड कर रहा है, मतलब थिकनेस को कितना कर देगा, वो हाफ कर देगा ना ये कट होने के बाद. ओके, अगर वो थिकनेस को कट कर रहा है तो देन इन दैट कंडीशन आपको रिप को हैचिंग नहीं प्रोवाइड करना होता है. गेटिंग इट? ये जो Okay. रिप है ना, जो सपोर्ट मटेरियल होता है, इट्स अ सपोर्ट मटेरियल ओनली. फॉर दैट रिप इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ द हैचिंग. ओके. क्लियर है? देखो Yes, अगर देखने जाएंगे तो दिस पार्ट इज ऑल्सो रिप, ये पार्ट भी रिप है यहाँ पे. गेटिंग इट? हम्म. दिस पार्ट इज ऑल्सो हैविंग अ रिप. लेकिन अभी इसका विड्थ देखो, इसका विड्थ ज्यादा है. गेटिंग इट? है ना, इसका विड्थ ज्यादा है, लेकिन ये रिप का एक देखो, सिंपल लैंग्वेज में इतना ही बोलता हूँ मैं आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है. कि रिप को आपको एग्जैक्टली जो भी थिकनेस है उसका, कि 12 mm, तो उसको डिवाइड कर दिया, तो वो जो पार्ट रहेगा, तो ऑन दैट पार्ट यू नो नीड टू शो द हैचिंग लाइन. ओके, सर मतलब अगर बहुत माइन्यूट रहेगा, मतलब बहुत छोटा रहेगा, yes तो yes उसको कंसिडर yes नहीं करना. yes, in that condition only. ओके. Fine. यस सर. एंड उसका पर्पस ये भी होता है कि वो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि देयर इज अ रीप. अदरवाइज जो आइडेंटिफाई नहीं होगा ना कि यहाँ पे रीप है. और इसका स्पेशल रीजन है इसका, व्हेनेवर इट इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर ना, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो पता चलता है कि हाँ ये रीप यहाँ पे अलग से हमें वेल्डिंग करना है. ओके, रीप का कैसे होता है कि रीप वो अलग से वो पार्ट बनाया जाता है. ओके, एंड दैट पार्ट इज वेल्डिंग ओवर देयर, वो वहाँ पे अलग से वेल्ड किया जाता है. ठीक, तो थोड़ा रियलाइज होने के लिए उसको हैचिंग नहीं देते. ओके, मतलब ऐसा मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी एक रीजन है उसका. यस Okay, सर. I have worked in the industry for 3 years. So during that, I have identified that reason behind that. Okay, मतलब ऐसे वर्कर वेर टेलिंग अस कि यहाँ पे रिब है. ओके, ये क्या है, यहाँ पे रिब है, तो मतलब वो कैसे आइडेंटिफाई होता कि ये पोर्शन तो है यहाँ पे, मतलब ड्राइंग तो एग्जिस्ट हो रहा है ना यहाँ पे, लेकिन सर यहाँ पे हैचिंग क्यों नहीं है. We were asking question to the supervisors or the some of the experienced workers. तो they were telling कि हाँ यहाँ पे रीब एग्जिस्ट हो रहा है. ओके, रीब मतलब वो सपोर्ट पार्ट यहाँ पे अटैच करना है. ओके, आई होप अभी क्लियर हो गया रीब वाला पार्ट. यस सर. ओके चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे कि नाउ इट्स टाइम टू लीव फॉर यू. ओके, आप इस मीटिंग को लीव करो. आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग द रिकॉर्डिंग एंड
with the explanation, I will complete the example. Okay, better? Okay, sir. Okay, Bye, sir. and you can check the video later and solve the example at your own. Okay, now I request all of you to leave the meet. Thank you, sir. Thank Thank you. you, Thank you, sir. sir. Sir, bye, sir. You are welcome all. Thank you, sir. Now we are going to complete the another views over here. Okay, front view is ready with us. It's a sectional front view. Now we are going to draw its top view. Okay. Whenever we are referring this diagram from the top side, observer is there at the top. Okay, so we have to just check it how it will look. Okay, so again we are focusing on this example part by part. Okay, okay, this frustum wala part is there. Thereafter, this is the support plate, and this is nothing but the cylindrical part, and this is nothing but the rim. Okay, so part by part we are going to draw its top view over here. Okay, so now see, और देखो फ्रस्ट्रम के बारे में अगर सोचना है तो फ्रस्ट्रम का ऑलरेडी टॉप व्यू यहाँ पे रेडी हो गया. सो नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट सपोर्ट प्लेट. ओके, जो सपोर्ट प्लेट का प्रोजेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने लिया है. तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ओके, एंड एंडिंग अप टू दिस. यहाँ तक वो एंड हो रहा है सपोर्ट प्लेट. ऑब्वियसली उसका लेंथ 60 mm रहेगा. यू कैन ट्रैक दैट डायमेंशन फ्रॉम हियर ऑल्सो. Okay, now see this kind of difficulties you may arise. This kind of difficulties you may arise. देखो ये क्या करेगा, ये जो नियरेस्ट वाला पॉइंट है ना वो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है. तो जब भी आपको अगर ऐसे लग रहा है कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो नियरेस्ट वाले पॉइंट को आप ऑफ कर दो. ओके, so what you are supposed to do, I'll enter. Now it is less disturbance is there. We have got the point at the distance of 60 mm easily. Now we have to connect it at here. Sometimes it may happen that कि आप लोगों ने जो लाइन ड्रॉ किया वो थोड़ा ओवरलैप हो जाता है, अदरवाइज मर्ज हो जाता है. तो इट मे हैपन ड्यू टू द विजिबिलिटी इशू, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट. ओके, सो सपोर्ट प्लेट इज देयर. तो सपोर्ट प्लेट हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया. बट देखो ये जो सपोर्ट प्लेट है तो सपोर्ट प्लेट का दिस इनर एज इज देयर. ओके, ये टॉप व्यू से देखेंगे तो ये इनर एज इज देयर. तो इनर एज के लिए हमें यहाँ पे हिडन लाइन प्रोड्यूस करना है. ओके, इनर एज का प्रोजेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है. इट इज एग्जिस्टिंग एट हियर. तो फॉर दैट वी हैव टू ड्रॉ वन हिडन लाइन. ओके, ऑब्वियसली इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. तो हिडन लाइन का प्रोजेक्शन से स्टार्ट होगा. ओके, और इट विल बी एंडिंग एट हियर. Okay, what next? Again, here is the issue of visibility. Okay, due to some graphic error, it may happen. Let me check it. Refreshing, sometimes it went off.
Okay, let it be there, but we have drawn that hidden line over here. Okay. Now what next? We have done with that support plate. Now it's time to draw the reef. Okay, reef वाला part जो है यहाँ पे वो draw करना है हमें. So what the technique I'm using over here, you can just note it. I'm doing the O enter and width of that trip is 12 mm. So I'm just making the half of that 6 mm. Okay, but it's not for the complete line. So what I'm doing, just I'm reducing its length, just picking this point and putting it here. And obviously it is not the center line. It's not the center line. So we are having the solution for that also. Again, one hack is over here. So that ray is not up to the end point. ये end तक नहीं है उसका existence. So ये उसका existence कहाँ पे है? देखो उसका existence जो है, it is up to here only. देखो I have just taken a construction line वाला layer, okay, and taking the command layer. Okay, वो end कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे end हो रहा है. Okay, this point is the guiding point for floating with the end point for the tree. ओके, मतलब ये रिप का एंड पॉइंट कहाँ पे रहेगा? आपको दिस ओनली रिप विल एंड. रिप यहाँ तक ही एंड होने वाला है. दैट्स इट. ओके, एंड 1 2 जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द ऑब्जेक्ट लाइन. ओके, आई होप ये रिप वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया. बाय टेकिंग द प्रोजेक्शन of the that tangent point where that rib is touching. Okay, up to that only you have to draw the rebola point. Okay, what next? After this, we have to draw. We have to take care of the cylinder or cylindrical part at the bottom. Okay, ये cylindrical वाला जो part है उसका भी हम लोग देखते हैं कि कैसे draw करना है. Already उसका projection हम लोगों ने draw किया, तो यहाँ से cylindrical वाला part draw हो रहा है. Object line I have to select for that. Line command. ओके, यू कैन चेक इट कि उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी ये मैच हो रहा है. गेटिंग इट, बट इट इज बिहाइंड दैट. उसके पीछे चला गया तो ये कंप्लीट हमें यहाँ पे ड्रॉ करना नहीं है. तो अप टू हियर ओनली आई मीन ड्रॉइंग इट. यहाँ तक वो विजिबल रहेगा और उसके बाद में जो सिलिंड्रिकल वाला पार्ट है, ओके, उसका लाइन जो है up to this it will be a hidden manner and इसके बाद में वो कंटिन्यू होगा. ओके, देखो how I have deal with that. कंस्ट्रक्शन लाइन को मैं थोड़ा ऑफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाए उसके बारे में. देखो ये जो लाइन इन बिटवीन मैंने इंटेंशनली ऐसे पार्ट में ड्रॉ किया था. इट विल बी हिडन लाइन बिकॉज ऑफ सिलेंडर का जो बॉटम वाला पार्ट है ना, तो उसके नीचे वो ये सपोर्ट प्लेट के नीचे चला जाएगा, तो इट विल नॉट बी विजिबल कंप्लीटली. तो इसके लिए मैंने उसको वैसे ड्रॉ किया. ओके, तो सिलेंडर के साथ हम लोगों ने डील किया. अभी इनसाइड होल इज देयर फॉर द सिलेंडर, तो इनसाइड होल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे उसका. ओके, इट इज फॉर दैट वी नीड टू ऑन द कंस्ट्रक्शन लाइन देयर. ओके, देखो उसका यहाँ पे लाइन हमें अभी क्रिएट करना पड़ेगा ऑफसेट करके. O enter, T enter. Just offsetting this line through this inside point. Done. Obviously, it will be a hidden in manner. Of a hidden manner, it will be. Okay. So I have to draw the hidden line for that. यहाँ से यहाँ तक आ गया उसका hidden line. Done. Enter. Okay. Yes. And for the cylindrical part, we know कि center line matters a lot. तो center line उसके लिए हम लोग यहाँ पे draw कर देंगे.
ओके देखो नाउ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट वेयर द कर्सर एग्जिस्टिंग। अभी वो पॉइंट क्यों नहीं दिख रहा है हमें, बिकॉज कि इसका ये नियरेस्ट वाला पॉइंट ऑफ है। ये अगर ऑन करेंगे, देखो जरूरत लगता है तो उसको ऑन कर देंगे, अगर जरूरत नहीं है तो उसको ऑफ कर देने का। समटाइम वो हमें डिस्टर्ब भी करता है, समटाइम इट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो। तो अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो उसको मैंने ऑन किया एंड ड्राइंग द सेंटर लाइन। Okay, in this way only we have finished the top view of the object. Top view object का finish हो गया है। Okay, now we have to take care of the side view. Okay, तो देखते हैं अभी इसका साइड व्यू कैसे ड्रॉ करना है। In the side view, okay, again we have to do it by taking care of the all the parts। जैसे फ्रस्ट्रम वाला पार्ट है, ओके उसको पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ हियर वन टेक्निक ऑलरेडी वी हैव प्रैक्टिस बिफोर। कि जो 1 2 3 4 ये जो प्रोजेक्शन है, ओके सेम विल बी विजिबल इन द साइड व्यू। ओके इसका नेचर साइड व्यू में भी सेम मेंशन रहेगा। ओके तो यू कैन just copy that from here, okay, but it is required that here one center line should be existing। okay तो हमें क्या करना है, एक सेंटर लाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेना। देखो हाउ आई एम डूइंग इट। अभी ये सेंटर लाइन जो है यहाँ से भी आप उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इंटेंशनली मैंने उसको एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करने के बाद इसको मैं ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओके तो इन द सम ऑफ द ड्राइंग्स दिस टेक्निक यूज कि मतलब ऐसे भी आप सेंटर लाइन को ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम द टॉप व्यू टू द साइड व्यू, अदरवाइज फ्रॉम साइड व्यू टू द टॉप व्यू। ओके व्हाट नेक्स्ट, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1 2 3 4 and 5 these lines I am just transferring it here। what I supposed to do, CO command, not control C will not be helpful over here। you have to click on you have to select the command copy CO command। okay CO किया, टाइप किया, एंटर किया। now this is the base point and by selecting this base point I am just pasting it here, done। okay I have just जो फ्रस्ट्रम वाला पार्ट था that thing is over। okay this thing I have to, these two lines I have to convert into the hidden line। okay what next, after this I have to take care of this support plate। okay support plate के बारे में सोचना है। okay तो support plate अभी देखो ये सिलेंडर पे यहाँ पे टच हो रहा है, ये पॉइंट पे यहाँ पे सिलेंडर को टच हो रहा है। तो up to that I have to draw it that support plate। okay and in between some space is there for the rib also। ये rib के लिए भी space हमें यहाँ पे छोड़ना है। चाहिए तो हमें अभी देखो अगर साइड व्यू से देख रहे हैं हम लोग फ्रॉम दिस साइड वी आर वाचिंग, तो पहले हमें ये सिलेंडर दिखेगा बेटा। ओके ये सिलेंड्रिकल पार्ट पहले हमें दिखेगा, राइट ना। मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वर के नजदीक क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट, उसके बाद में ये रीब के बाद में सपोर्ट प्लेट, उसके बाद में ये फ्रस्ट्रम। तो इन दैट सीक्वेंस आल्सो वी शुड डू इट। तो चलो ठीक है, अभी ये वाला थोड़ा सा फंडा में यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। वो मुझे थोड़ा सा ये रीब एंड सपोर्ट प्लेट का पार्ट अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए, ड्राइंग में पुटअप करने के लिए हेल्प करेगा। तो पहले सिलेंडर का पार्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ओके तो ऑब्वियसली सिलेंडर के लिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पे बेटा, देखो इसे आप ट्रैक करके भी ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज what you can do, you can just do the offset, O enter, P enter। Okay, that cylindrical part is starting from here and ending up to here। Okay, and thereafter there is a presence of reap। okay reap कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रीप स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट होगा रीप, पूरे एंड होगा अप टू दिस पॉइंट। जो प्रोजेक्शन लिया है हमें
ये पॉइंट का हमें पोजीशन क्रिएट करके रखना है। देखो अभी उसके लिए भी मैं वो सेम आइडिया करता हूँ जो मैंने टॉप व्यू के लिए किया था, क्योंकि वो कहाँ पे एंड हो रहा है कि दिस टेंजेंट लाइन इज एंडिंग एट दिस पॉइंट। गेटिंग इट, ये वो पॉइंट है ना यहाँ पे जो एंड हो रहा है। ओके, तो आई एम जस्ट टेकिंग दैट लाइन, दैट कंसिडरिंग दैट पॉइंट एंड ब्रिंकिंग इनटू द साइड व्यू। इस साइड व्यू में वो रेफरेंस के लिए मैं लाइन लेके आया हूँ। ओके, अभी क्या करना है, अभी जो रिप है स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, एंड हो रहा है अप टू दिस पॉइंट। ओके, तो मुझे देखो अभी मैं एक आइडिया यहाँ पे कर रहा हूँ सेंटर में, बाय टेकिंग द ऑब्जेक्ट कमांड। ओके, बाय टेकिंग ऑब्जेक्ट कमांड, सॉरी, बाय टेकिंग द ऑब्जेक्ट लेयर एंड टेकिंग द लाइन कमांड, एक लाइन में यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, रिप का एंड पॉइंट है राइट, यहाँ से ड्रॉ कर दिया। व्हाट आई एम डूइंग नाउ, अभी इसको मैं दोनों साइड में कॉपी करूंगा, CO एंटर, एनी पॉइंट यू कैन सिलेक्ट। ओके, अगर ये पॉइंट सिलेक्ट करना है तो भी चलेगा, एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट तो भी चलेगा। ये डायरेक्शन में मुझे 6 डिस्टेंस के ऊपर कॉपी किया, ऑन अनदर डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज किया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन 6 एंटर, दोनों जगह पे वो कॉपी हो गया। नाउ दिस लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, इसको डिलीट कर दिया। Okay, तो ये हो गया आपका रिप का प्रोजेक्शन। तो ऑब्वियसली ये रिप आएगा तो इन बिटवीन ये जो लाइन का कुछ काम नहीं है तो इसको ट्रिम करना है। Clear to everyone, I hope it is clear to every student now. अभी इसके बाद में क्या करना है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, हिडन लाइन, उसका हिडन लाइन जो ड्रॉ करना बचा है तो उसको भी ड्रॉ कर देंगे। Cylindrical part done, rev is also done. Now we have to take care of that support plate वाला part. Okay, take a command object line. ये क्या हो रहा है, यहाँ से भी डायरेक्टली एक लाइन यहाँ पे हमें क्रिएट करना है, ये एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दी। ओके, नाउ इट इज कमिंग अप टू द दिस पॉइंट, ये सिलेंडर का टॉप है वहाँ तक वो कनेक्ट हो रहा है। डन, एंटर, यहाँ से एक लाइन यहाँ पे। ओके, दैट्स इट। देखो अभी एक चीज हम लोग का मिस हो गया यहाँ पे, दिस प्लेट इज देयर ना, ये एंड में यहाँ पे जो प्लेट एग्जिस्ट हो रहा है। ओके, मतलब ये जैसे ये सपोर्ट प्लेट का यहाँ पे टॉप सरफेस है, वैसे यहाँ पे एक बॉटम सरफेस भी है ना। तो वेन एवर वी आर वॉचिंग फ्रॉम द साइड व्यू, फॉर दैट बॉटम सरफेस वन लाइन शुड बी देयर इन द साइड व्यू। ओके, तो लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ऑब्वियसली विजिबल नहीं रहेगा, इट विल बी हिडन लाइन, तो हिडन लाइन का लेयर लेके ड्रॉ करना है। देखो उसका प्रोजेक्शन यहाँ से कंसिडर करना है। From here you can start it and you can end it up to this. Getting it? So in this way we have deal with this example. Okay. So after drawing this, student is supposed to write the text in the diagram. Okay. तो student थोड़ा सा confused होते हैं कि text कैसे लिखना है, फिर भी I'm going to tell you once again. ओके, एग्जाम में भी आपको बेटा क्या लिखना है, एग्जाम में भी इन द एग्जाम ऑल्सो स्टूडेंट हैव टू राइट, मतलब आईटी में तो बस फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे आप, मतलब जो भी सेक्शनल व्यू बोला है वो ड्रॉ करेंगे। ओके, फाइनल एग्जाम में तो तीनों भी ड्रॉ करना है और स्टूडेंट हैव टू राइट हिज नेम। ओके, स्टूडेंट को उसका नाम ये ड्राइंग के साथ में यहाँ पे मेंशन करना है, एज वेल एज यू हैव टू मेंशन व्हाट एवर द व्यूज यू हैव ड्रॉन। ओके, आइसोमेट्रिक के लिए लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, बस आपको नाम लिखना है, बट हियर यू हैव टू राइट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। ओके, तो हाउ वी आर सपोज टू राइट इट, तो देखो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट वाला एक जो कमांड है। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दैट। ओके, देखो अब ये कमांड क्लिक करने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद या फिर टी एंटर करने के बाद दूसरा ऑप्शन है कि टी एंटर, P is for the text, टी एंटर। ओके, देखो अभी क्या करना है, I have to just done the T enter. After T enter, you have to open the box by clicking once. ओके, ये बॉक्स ऐसे ओपन हो जाएगा, वंस क्लिक करने के बाद बॉक्स ओपन हो जाएगा। बॉक्स को क्लोज नहीं करना है। ओके, सिंगल क्लिक से बॉक्स ओपन होगा, उसके बाद में आपको हाइट स्पेसिफाई करना है। कैसे करना है, एच एंटर। ओके, अभी टेक्स्ट का हाइट मुझे चाहिए 8 mm, तो अभी टाइप 8 एंड एंटर। ओके, नाउ बॉक्स क्लोज। अभी कर्सर से आपको बॉक्स क्लोज करना है।
Now it will give you the box on the screen. Okay, it will be the box like this. So here you can type whatever you want to write. Okay, any color you can choose for the text. बेटर होगा कि जो अपना वाइट कलर है ऑब्जेक्ट वाला दैट यू कैन प्रेफर करते हैं. ओके, अगर एक बार आपका टेक्स्ट देखो इंटेंशनली मैंने उसको यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे करते तो थोड़ा सा सुटेबिलिटी अपना नहीं रहता था, तो बेटर हम लोगों ने मैंने इंटेंशनली यहाँ पे उसको टेक्स्ट को लिखा है. तो अभी यहाँ से क्या करना है, कंट्रोल ये सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल वी करना है, वेयर यू वांटेड टेक्स्ट वहाँ पे उसको पेस्ट करो. क्योंकि यहाँ पे मुझे मैंने उसको पेस्ट कर दिया. ओके, कंट्रोल अगेन वी, मतलब कंट्रोल वी से मतलब क्या होगा, हियर आल्सो यू कैन एबल टू पेस्ट इट. कंट्रोल ठीक है. नाउ यू जस्ट अभी ये प्रिंट हुए तो ठीक है, लेकिन बट इट्स अ सेक्शनल प्रिंट है ना, तो उसके आगे हम लोग लिख देंगे सेक्शनल. यू हैव टू जस्ट डबल क्लिक दैट SECT. शॉर्टकट में लिखेंगे तो भी चलेगा. Okay, this is nothing but the top view. And this is nothing but the side view. Okay, LHS view, right? Left hand side view. Shortcut में LHS लिखेंगे तो भी चलेगा. Okay. If you want to underline that, अगर आपको उसको अंडरलाइन करना है तो पहले ही अगर यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करते हो ना, राइट करते हो, तो उसको आप पहले से अंडरलाइन देके रखो. तो ऑब्वियसली कॉपी करने के बाद जहाँ जहाँ पे पेस्ट करेंगे तो इट विल कॉपी अलॉन्ग विद दैट अंडरलाइन आल्सो. ओके, तो दैट्स इट एक्सपेक्टेड. ओके, और स्टूडेंट को इसके साथ में क्या लिखना है, अभी ये सेम टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यू कैन पेस्ट इट एट हियर. यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर सकते हो. ओके, अगेन कंट्रोल वी, कंट्रोल. तो जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको यहाँ पे बोलना है कि आपको डिवीजन लिखना है, डिवीजन ए, ओके, एस्केप करना है, सॉरी, तो सिंपली बाहर क्लिक करना है. मतलब ये लिखने के बाद टेक्स्ट में चेंजेस करने के बाद बाहर क्लिक करना है. इस पर डबल क्लिक करके फिर सिलेक्ट करना है ऐसे, यू टू राइट योर नेम. वेट, पहले रोल नंबर मेंशन करना है. जो भी आपका रोल नंबर रहेगा. ओके, उसके बाद में बाहर क्लिक करना है अगेन, एंड अगेन फ्रंट व्यू डबल क्लिक करो यहाँ पे, एंड हियर यू हैव टू राइट योर नेम. In this way only you have to do it. So you will be ready for the print out now. ओके, अभी चलो ठीक है, इसका मैं अभी प्रिंट आउट भी कैसे लेने का वो भी आपको बता देता हूँ. और वेट, डायमेंशन वाला पार्ट रह गया. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ईच एंड एवरी एग्जाम्पल स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू गिव हार्डली 3 to 4 डायमेंशन. ओके, 3 डायमेंशन आर मोर देन इनफ. 3 भी देंगे तो भी चलेगा. फॉर ईच व्यू, ओके, फॉर example of sectional ortho and orthographic example, for each view student have to give 3 dimensions. Okay, minimum 3 dimension देना, और 3 ही दे दो चलेगा, not more dimensions are expected. ओके, तो डायमेंशन कैसे देना है सर, तो डायमेंशन का स्टार्टिंग लेटर होता है डी. तो पहले से हम सेटिंग्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो डायमेंशन का स्टार्टिंग लेटर है डी, तो डी एंटर करके जो सेटिंग रिक्वायर्ड है वो सेटिंग करके लेंगे हम लोग. ओके, तो मैंने डी एंटर किया है यहाँ पे. ओके, आफ्टर डूइंग द डी एंटर आई हैव टू क्लिक ऑन मॉडिफाई. ओके, तो ये मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद व्हाट आई सपोज टू डू, आई हैव टू डू सम चेंजेस ओवर हियर. ओके, पहले तो मुझे एरो साइज चेंज करना है 3 mm. ओके, एरो का साइज मेरा रहेगा 3 mm वाला. ओके, एंड देयर आफ्टर
I have to click on text. Okay, text का जो height रहेगा dimension का, that will be 7 mm. Okay, 5 to 6 7 8 आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो 7 mm मैंने भी यहाँ पे सेट किया. टेक्स्ट कहाँ पे सेट करना है? टेक्स्ट प्लेसमेंट वर्टिकली अबव द लाइन. ओके, लाइन के ऊपर चाहिए. ओके, लाइन के ऊपर चाहिए एंड इट शुड बी ISO स्टैंडर्ड. इट शुड फॉलो द ISO स्टैंडर्ड. ओके, देखो अभी यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट हुआ है, मतलब ऑटोमेटिकली डायमेंशन के अराउंड एक रेक्टेंगल है, तो ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट जो है, ये इसको अनटिक करेंगे तो निकल जाएगा. ओके, एंड ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन. लाइन के ऊपर 1 mm का गैप चाहिए, अदरवाइज 1.5 का गैप चाहिए, तो भी आप वो गैप सेट कर सकते हो. देखो ये थोड़ा सा गैप यहाँ पे बढ़ गया, मतलब डायमेंशन लाइन के थोड़ा सा ऊपर टेक्स्ट जाएगा. ओके, व्हाट आफ्टर दिस? No need to do any changes in the feet. So in the primary unit देखो अभी ये 39.5072 up to 4 digit accuracy बता रहा है. You have to just change the precision to 0 only. Okay, that are the important changes. देखो क्या किया, symbol on arrows में ये 3 mm साइज किया टेक्स्ट में. ओके, टेक्स्ट में हम लोगों ने टेक्स्ट साइज 7 mm सेट किया. टेक्स्ट प्लेसमेंट वर्टिकली अबव किया. ओके, देयर आफ्टर टेक्स्ट ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन 1.5 mm सेट किया. Here we have set the ISO standard, and after that in the primary setting you have to set the precision level to 0. So that's it for the dimensioning purpose. You have to click on OK now, and you have to set on set current. Set current करना है और close करना है. Set current करने से क्या होता है? What will happen? So that properties are applying from the existing dimension. फिर भी already हम लोगों ने dimension draw किया नहीं है. Still we are just clicking on that and you are closing it. ओके, नाउ वी आर रेडी टू गिव द डायमेंशंस. ओके, अगर हम लोग ये ड्राफ्टिंग का सेटिंग नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहेगा तो उससे डायमेंशन आएगा, वो डायमेंशन आपका इन प्रॉपर मतलब दिखेगा नहीं. देखो पहले अब उसका बाय डिफॉल्ट हाइट था 0.18. ओके, तो 0.18 मतलब वो आपको डायमेंशन दिखेगा भाई नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि डायमेंशन आया है कि नहीं आया. Okay, so just starting to give the dimension. Some linear dimension we are giving. देखो पहले linear dimension देता हूँ मैं. जो भी linear dimension important लगते हैं डायग्राम में, वो dimension अभी हम लोग यहाँ पे put up करेंगे. Like this dimension from the center point to this. ये center से जो भी dimension है उसका 66 mm. Okay, wait, we have to change the layer. डायमेंशन के लिए क्या ऑलरेडी हम लोगों ने एक लेयर क्रिएट किया है यहाँ पे. ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज दैट लेयर. अगेन एंटर. देखो एंटर करेंगे तो लीनियर डायमेंशन वाला जो प्रॉपर्टी कमांड है वो रिपीट हो जाएगा एंड यू शुड बी एबल टू गिव द डायमेंशंस इन दैट. यहाँ से ये डायमेंशन हमें सेट करना है 20 mm. ओके, I have to change the layer before giving the dimension. This dimension is 80. You need to mention it over here. In between, whatever the dimension is there, I have to mention it. Length of this cylinder, here I can get it, it's 80 mm. Now I'm giving some dimension for the diameters. Inside diameter is 30 mm and the outside diameter, I'm just clicking on enter, so automatically वो enter होते जाएगा and it will just select the repetitive command dimension for the diamond. देखो यहाँ पे वो चेंज हो गया ना उसका नेचर. एक बार डायमीटर सिलेक्ट करते हैं and just clicking on enter now, so it is going to change. Okay, this way only we have done given the dimension. That's are enough dimensions are there.
चलो ठीक है, फिर भी हम लोग को यहाँ पे एक डायमेंशन कम है एज पर अवर रिक्वायरमेंट 3 डायमेंशन पर व्यू, तो और एक डायमेंशन हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं 40 वाला डायमेंशन। डन। ओके, वी आर चेकिंग कि यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, तो वो भी हम लोग फटाक से ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर लाइन इज मिसिंग ओवर देयर, wherever the cylindrical part is there, center line is most. Okay, that's it. चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ड्रॉ, वी आर गोइंग टू जस्ट मेक अ प्रिंट आउट फॉर दिस। ओके, इसका भी प्रिंट आउट कैसे लेना है देखते हैं। तो कंट्रोल पी इज द कमांड फॉर दैट। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द कंट्रोल पी, okay, here I have to select Adobe PDF, अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ वाला जो ऑप्शन है वो भी सिलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। ओके, हियर यू हैव टू सिलेक्ट द पेपर साइज A3, thereafter you have to click on window and you have to select the window where what you want to print. From this point to this I am going to print, and it should be at the center, so center the plot karna, and landscape view should be selected and I have to click on preview. Yes, it is giving me the correct view for the drawing. Okay, okay, that's the perfect drawing we have done. And you have to just click it here for the printout. Printout means it will create the PDF for right now. ओके, जैसे मैंने सजेस्ट किया कि ये बेटर होगा कि डेस्कटॉप के ऊपर उसका पोजीशन आप सेट करो, डेस्कटॉप के ऊपर रखो तो इजीली आपको मिलेगा। ओके, इट विल बी जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1, AutoCAD, along with your name you can title it. Let's check that PDF also. Let it be ready first. Okay, here it is. Let's open it just for review purpose. Okay, and here is your solution ready, so you can upload this file. Okay, one thing I forget to mention over here. Okay, in this diagram we are not getting the correct view of the lines. Okay, lines हमें perfectly नहीं दिख रहा है, that I miss to tell you. Okay, तो उसको कैसे करना है कि hidden line center line जो है, तो उसके लिए there is one command LTS line type scale, enter करो, you have to just set a particular scale. अभी for example इसके लिए मैं 20 टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, so you are observing कि देखो अभी लाइन का जो व्यू है वो चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली ये प्रिंट होने के बाद आपको अच्छा खासा व्यू इसका दिखाई देगा। ओके,
So no need to forget to do this also. Line type scale भी आपको apply करना. Line type scale, take a note of that. Okay, I hope this video is helpful to you, and I expect you will perform better into IIT 1 as well as in final IIT 2, which you are going to perform in the AutoCAD software, and final practical exam also. Okay, all the best to everyone. See you in the another session. Bye.